sponsorship is my goal and I need to upskill myself to a level where they have to give me sponsorship. Yes. तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 दिन में रिस्पांस देंगे, वीजा नहीं देंगे, रिस्पांस देंगे 5 दिन में। ड्रॉप करना शुरू किया, डेली नॉक करो, लेटर ड्रॉप करो। अगर भी किसी को लगता है कि नहीं यार स्पॉन्सरशिप तो मेरा बर्थ राइट है, तो नहीं है ऐसा। Why would I even think about हाँ। sponsoring you? इंटरव्यू में ये क्वेश्चन तो हमेशा आता है, सेफ गार्डिंग और GDPR। हमारी HR टीम से ईमेल आया, वो कहते हैं कि आपको जान के बहुत खुशी होगी, हमारा लाइसेंस आ गया। 4 महीने बाद मेरा वीजा खत्म था। बताया कि उन्होंने ना जॉब कोड जो होता है वो गलत डाल दिया था, उनको नहीं पता, उन्होंने अपने हिसाब से सही डाला। अब कह रहे अब इतने लोगों को फिर हम वीजा दें, इसमें तो पैसा कितना लगेगा हमारा। हाँ। मैंने कहा तो पैसा तो लगेगा तो लगाओ, पैसा तो होगा आपके पास। He's got some really, thrillers life. So keep watching. जो जनवरी के अंदर तो मेरा फिर वो बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। मैं कहा यार पैसे भी दे दिए एक्स्ट्रा, अक्टूबर का अप्लाई कर रखा है, अब जनवरी आ गया, कोई इनका रिस्पांस नहीं, मेरी HR टीम को भी कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब क्या करो, मतलब ऐसे में बंदा करे तो करे क्या। तो ये BBC न्यूज़ में भी आ गया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जिस दिन मेरा एक्सपायरी थी ना, उससे मेरा 3 दिन पहले वीजा आया। If you are looking to study abroad, then watch this full video and subscribe to our channel to stay updated. वो कह रहे भाई क्या कर रहे हैं, यहाँ लोगों को जॉब नहीं मिल रही, तुम्हारे पास मल्टीपल आ गई हैं। If you have any scope of giving me a sponsorship at any point of time, I have my visa to this point. If you promise me you can give me a sponsorship and time, then more than happy to join your service. If not, already have an offer from hospital and giving me a band 4 position, which is more money. First of all, second is closer to Band me 5, closer to band 4, me getting good enough money to get to a sponsored job, right? They said no, I'm so sorry, but we cannot promise you around sponsored visa. I said in that case I apologize and sorry, I won't be able to make it, and they did understood. So you ended up joining the Luton Yes. Hospital. Long story short, I started my journey in Luton. Guys, I think one very important thing. So NCSCT, that's the certification that Kanwal did, which specifically in cessation of smoking and drugs, and that is what he tried to start his career in. That's something that he had done Absolutely. projects in, as part of public health. It's an area of interest. We turned into certification, which he turned into a job. Absolutely. And I think that is not running in the rat race. He Bilkul. figured out some unique fact and used that to do searching jobs which required that uniqueness. Yes. And that is what converted into job for him. And don't give up right now. He has some, I have talked to him before, so I know his story, but he's got some really, thrillers life after this. So keep watching. You started at Luton. I started my job at Luton, and at that job I quickly realized this job is gonna be further than I thought, and not for the reason I was thinking. I thought this job gonna be some rocket science, a really hard job to do, but in reality it's not a hard job. It was super easy, and they kind of hired me before they had systems in place in that job, right? I was in the hospital, but there was nothing the moment regarding stop smoking. So that kind of like gave me a nick, because I'm going there, I'm getting salary, but I'm not doing anything. So you're not learning. They're giving me money, but at one point, like, it's very easy for people to slip into that kind of job or this kind of getting money. They have become comfortable and they just slip into the hole where they just stay there as long as the company allows them to stay there, right? Having said that, I was like, that's not what I'm here for. I need to not just get the job, I need to progress myself, improve myself in a way where I can have skill set to go higher, further. Because obviously job will not give me Sitting a bench won't give you the nothing. Nothing. And obviously this job was not visa sponsored, so at that my goal was sponsorship, but did understood at that time sponsorship is my goal and I need to upskill myself to a level where they have to give me sponsorship. Yes. Right? When you are adding enough value, yes, that they want to give you sponsorship instead of hiring somebody else. Absolutely. So what I started there, basically started to set things into place, started to write down the statement of purpose, policies, and went along all the different maternity units which were all across the hospital and help maternity care assistant to like get the carbon monoxide reading and do the job basically, right? So that kind of laid the foundation of this whole thing. And at one point I started, me and my colleague, we started to do the like training of different midwives and maternity care assistant
around stop smoking and why it's important, why you have to embed the whole system and the service, how it's prescribed in this national guidelines around this, right? And how we're gonna implement this into this small hospital in a small town. So that kind of gave fruit, but eventually I was doing this massive learning process for me. Yeah. I went out of my way to embed myself into auditing process. I went to reach out to data team, ask them like, how can I measure, like what's the percentage of MCAs who are conducting CO monitoring? So how can I measure this? It kind of gives you an insight into auditing. You have to measure your progress, right? So I did realize that the measurement went really up, like from 65%, which was amazing. But these things, the systems that I put in place, the backdrop of it, I was also applying for different jobs, right? And I was trying to look out for multiple jobs which might or might not give me an edge Sponsorship, yeah. or a sponsorship basically. So at that time, came across, I don't even remember when did I apply for the job I'm doing at the moment. Right. So it was part of this charity. At that time, it used to be called WDP, and I applied for this job in Redbridge. I had no clue when did I apply for this, but I was applying jobs left, right, and center, right? Obviously, the job portals I told you, I went through all. I got a call for interview for this job. It was a Teams interview. It was virtual interview for me. The best thing is be very honest what you're doing. I said, I've been given this job. These are the things I'm doing. The incentive project, the CO monitoring, the auditing, setting up 5 maternity units and how we're going to embed the whole system. That's something the interviewer really liked. She asked me many questions around this. That kind of gave her the idea that this person is passionate about this job and he knows how to do this job, although this person do not have a management experience before. Right. This person knows how to implement service ground up. Hardly had any expectation to get a call because this job was much higher than the band 4 job I was doing. Right. I thought, no, like they're not gonna hire me. They're not gonna hire a band 4 advisor for this job. And to my surprise, the lady who's my current manager, she gave me a call and she said, we are impressed by your interview and here's the feedback. They always give you feedback around your interview. We would like to offer you this job. And I was like, are you sure? I did not accept the job straight away. That time I was trying to push my manager in Luton to give me sponsorship for that job. Can you give me some time and I can give you a call back? Yeah, that's absolutely fine. I'll wait for your call. So I took the job offer letter. I took that to my manager in Luton and I said, see, I'm getting this job, right? Cleared the interview. I got the offer letter and this job is really high paying, much more than what we have, right? And it's a big gap money wise, but I'm okay to let it go if there's a chance of getting a sponsored visa, because in my current position at that time there was No possibility. no possibility because this company did not had sponsored license. License, yes. I know Right? that. No license. So I said, मेरा तो वीजा खत्म होने ही जा रहा है, मेरे को अभी वीजा चाहिए थोड़ा. तो मैंने अपनी मैनेजर को बोला कि आप प्लीज ऐसा कुछ आप देखो, मैं आपके लिए ये जॉब भी छोड़ दूंगा, आप मेरे को स्पॉन्सरशिप की बात तो करो. तो उन्होंने बात की, ये वो कहते नहीं हो पाएगा. उसी दौरान एक चीज और मेरे क्या काम में आई, ये इंटरव्यू से पहले की बात कर रहा हूँ मैं. 2022 में जो यूके के अनफॉर्चुनेटली जो क्वीन है उनकी वो डेथ हो गई. फिर उसके बाद जो किंग चार्ल्स हैं वो प्रिंस थे पहले, उसके बाद वो किंग चार्ल्स बने. तो मैं जब ल्यूटन में था तो मैं रेगुलरली ल्यूटन का वहाँ पे गुरुद्वारा है, वो अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, तो वहाँ मैं जाता था, डेली जाता था. मेरा रेगुलर स्केड्यूल था कि मैं वहाँ पे जाता था और वहाँ के मैं लोगों से को भी जानता था. तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे किंग चार्ल्स की विजिट. तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि यार ये तो किंग चार्ल्स की विजिट है और ये बहुत बड़ी बात है कि देखो राजा है यहाँ का और वो उस गुरुद्वारे में आ रहा है. Right. जिस गुरुद्वारे में मैं रेगुलरली जाता हूँ. तो मैंने कहा यार ये तो, मैं जैसे ही उसका मैंने टाइम पता किया किंग चार्ल्स, मैं एकदम भागता हुआ गया गुरुद्वारे, है ना. तो कपड़े मैंने थोड़े NHS के अपने उतार के अपना अच्छे से कपड़े पहने और मैं वहाँ पे गया, गुरुद्वारे गया. तो वहाँ पे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और ये सब. वो मैंने कहा मेरे को अंदर जाना है. कह रहे आप कौन? मैंने कहा यहाँ मैं रेगुलर आता हूँ, डेली आता हूँ. वो कहते नहीं, कहते आपके पास इनविटेशन लेटर है. मैंने कहा ये इनविटेशन लेटर कौन सा? गुरुद्वारे में इनविटेशन लेटर चाहिए. वो कहते कि जो भी लोग यहाँ पे अंदर जाएंगे उनको ऑलरेडी एक इनविटेशन लेटर आया है, जो एक होता है ना रॉयल हाइनेस इनविटेशन लेटर, समथिंग ऐसा कुछ था. वो आता है, उन्हीं लोगों की एंट्री है. आपके पास लेटर है तो फिर आपको एक बैंड मिलेगा हाथ पे पहनने का, फिर आपकी एंट्री अंदर होगी. Right. मैंने कहा लेटर तो नहीं है मगर अंदर तो मेरे को जाना है. अरे ये तो आप बात ही क्या कर रहे हो? कह रहे ये मतलब छोटी सिक्योरिटी मैटर हो जाएगा भाई. सिक्योरिटी मैटर है, कोई ऐसे थोड़ी किंग कंट्री का और अभी बना है. तो मैंने फिर ना एक वहाँ पे गुरुद्वारे में ही एक भाई जी हैं,
उनसे मेरी बहुत अच्छी बातचीत थी। उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आप देखो कुछ करो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, हैं? और मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं सिक्योरिटी थ्रेट थोड़ी हूँ यार। तो उन्होंने पता नहीं क्या किससे बात की, फिर जो काउंटर वाले थे उनको मैंने उनकी फ़ोटो दिखाई, ये सब किया, उन्होंने मेरे को बैंड दे दिया। बैंड पहनाया, कहते चुपचाप निकल जाओ अंदर। तो ऐसे मेरे को वहाँ पे एंट्री मिल गई, और वहाँ पे मैं आप ये देखो, छोटी बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बात है कि आप वहाँ पे एक वहाँ के किंग से मिल रहे हो, है ना। और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो ऐसे ही मतलब एक हमने तो कभी सोचा भी नहीं, मैं तो इंडिया में आज तक मैं किसी लोकल एमपी से नहीं मिला, है ना, हमें इतना क्या पता होता है, मगर आप किसी इतनी बड़ी कंट्री के एक रॉयल हेड से मिल रहे हो, है ना, तो वो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। फिर उनको मैंने मिला, हाथ मिलाया, उनसे मैंने बात की, उनको मैंने बताया कि मैं स्टॉप स्मोकिंग में काम करता हूँ, और मैं बहुत, वो कहते हैं ये तो ईजी काम नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम फुल पैशन है हमारा, करेंगे। फिर ऐसे ही उन्होंने थोड़ा जोक किया, अच्छा कह रहे आप स्मोक करते हो, मैंने कहा नहीं मैं नहीं करता, कह रहे फिर वेप करते होगे, ऐसे उन्होंने अपना थोड़ा बैंटर किया। तो ये एक मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। फिर मैंने अपनी जो मैनेजर है उसको भी दिखाया, मैंने कहा देख, वो कहती ये तो आप अपने बच्चों तक को दिखाना, ये देखो कितने लोगों को मौका मिलता है ऐसे, है ना। फिर उसके बाद मैंने गुरुद्वारा नहीं छोड़ा कभी भी ना, ये मैंने हमेशा करके रखा है कि गुरुद्वारे को हमेशा मैंने अपने साथ रखा है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ना एक फेथ सिस्टम होना चाहिए आपके पास। आपने जहाँ अपना, यहाँ पे आके ना सब भूल जाते हैं लोग, यहाँ का कल्चर ही ऐसा, नशे शराब क्लब ये सब इसके अंदर ऐसे चले जाते हैं कि वो सब भूल जाते हैं फिर। और कुछ तो इंडिया से भूल के ही आए होते हैं, कुछ तो शुरू से इन्होंने कभी नहीं कुछ किया होता, मगर वही है कि फिर माइंडसेट की बात है। तो उसके बाद फिर मैं अपना रेगुलर जाता रहा गुरुद्वारे। अच्छा, मेरे को नहीं पता चला, एक दिन मैं सेवा कर रहा था गुरुद्वारे में ही, तो मेरा क्या होता था, मैंने जैसे सुबह थोड़ी मैंने सेवा की, फिर उसके बाद मैं अपना ऑफिस हॉस्पिटल चला गया। हाँ। ठीक है, या मेरे पास थोड़ा टाइम हो, मेरा ज़्यादा दूर नहीं था, पास ही था ऑफिस, हॉस्पिटल से ज़्यादा दूर नहीं था। तो मेरे को नहीं पता चला, मैं कहा यार ये एकदम से क्या हुआ, इतने लोग आ रखे हैं। वो पता चला किंग चार्ल्स की विजिट के बाद ना मीडिया वहाँ पे, 1-2 हफ्ते बाद की बात है, मीडिया वहाँ पे आ रखी थी, बीबीसी आ रखी है। तो वो बीबीसी वाले आ गए और वो आके उन्होंने ना क्वेश्चन करने शुरू किए। मैंने कहा कौन है ये, हो क्या रहा है, हम तो लगे हैं अपना सेवा करने में, मेरे को समझ नहीं कि बात क्या कर रहे हैं, है ना। तो फिर उसके बाद वो कहते कि आप कौन हो। मैंने कहा देखो मैं नियर बाय हॉस्पिटल हूँ, यहाँ पे हॉस्पिटल में काम करता हूँ, और मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं अपना यहाँ पे सेवा करता हूँ, और अपना फिर गया अपना हॉस्पिटल से गुरुद्वारे, फिर घर। तो बहुत इंप्रेस होगी, कह रही अच्छा आप सेवा भी करते हो, आपको इतना टाइम भी मिल जाता है, आप हॉस्पिटल में भी जॉब करते हो, ये सब। मैंने कहा हाँ जी मिल जाता है, मतलब निकालना पड़ता है। निकाल लेते हैं। मैंने कहा और मैं कर क्या रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास पता नहीं कितना बिजनेस चल रहा है मेरा। तो फिर उन्होंने बताया, वो कहते हैं अच्छा रिसेंटली अभी यहाँ पे किंग चार्ल्स की विजिट हुई थी, आपको पता है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मैं ये वीडियो देखो, मैंने हाथ भी मिलाया, बात भी की है, और बहुत उन्होंने नाइस बैंटर किया। फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मेरे को ना ऐसे कट करके बोला, कहते कि देखो आप अब उनसे मिले हो, तो मेरे को आपका एक फीडबैक चाहिए, आप कैमरा में देखो और जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर करो, है ना। तो उन्होंने ऐसे पूछा, मैंने वो आंसर किया। तो ये सारा बहुत जल्दी में हो गया, मेरे को समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। बट उस टाइम पे, अब मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास आज भी रखा है वो, ये बीबीसी में नहीं, उन्होंने पोस्ट किया, मेरी फोटो के साथ पोस्ट किया, तो ये बीबीसी न्यूज़ में भी आ गया। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, हमें तो पता ही नहीं था। वो देखो बंदा जाए गुरुद्वारे कितना कुछ मिल जाता है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद मेरे को लगता है वहीं की प्रेयर, तो फिर वो यहाँ पे मेरी जॉब स्टार्ट होगी। मेरे उन्होंने मना कर दिया, वो कहते हैं हम नहीं कर सकते, जो NHS की पॉलिसी है उसमें हम नहीं दे सकते। मैंने कहा ठीक है फिर बाय बाय। फिर मैंने अपना यहाँ पे अपनी जॉब, स्पॉन्सरशिप नहीं मिलनी तो पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, और क्या, पैसे तो चाहिए ना। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पैसे की बात नहीं है, देखो प्रोफाइल भी है, अपनी प्रोफाइल बढ़ती है, और अपना जब मिल रहा है तो हम क्यों ना लें। ऐसा तो है नहीं हम फ्री में थोड़ी स्टडी किया, पैसे दिए हैं, बेशक स्कॉलरशिप मिली है बट पैसे तो दिए ना। तो यू टू रेड ब्रिज हियर। फिर मैं इल्फर्ड में मूव हो गया। तो अच्छा, उस टाइम पे फिर मैं यहाँ पे इल्फर्ड में मूव हो गया। उस टाइम पे जिस दिन मैं मूव हुआ उसके अगले दिन मैं इसी पार्क में आया था, वैलेंटाइंस पार्क, मेरे को पहली बार पता चला ये। तो जॉब में जब स्टार्ट किया तो तब मेरे को समझ में आया कि जॉब तो टफ है, क्योंकि इससे पहले मैंने ना मैनेजमेंट की जॉब नहीं की थी, तो वो एकदम से बहुत कुछ सिर पे आ गया लोड, तो जॉब टफ थी। मैं जिस दिन आया उसके 10 दिन बाद मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया है, इंटरव्यू लिया है मैंने लोगों के 10 दिन के अंदर अपनी जॉब के हायर करने के लिए, कि एडवाइजर हायर करने हैं इसमें, है ना, और कनेक्शंस बनाने। करते करते ये देखो कि एक होता है कि इतना प्रेशर आ गया था ना कि मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, रात को मेरे को बिल्कुल ऐसे नींद नहीं आती थी, मेरे दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती थी कि यार कैसे होगा यार, ये तो बहुत टफ है ना। और क्योंकि एज अ मैनेजर मैंने कभी पहले जॉब नहीं की थी, तो मैनेजर का काम होता है कि आपको ना 10 जगह पे अपना हाथ डालना होता है, और हर चीज़ को आपने काउंट करके रखना है, मेजर करके रखना है, और आपको क्विक डिसीजन लेने होते हैं। ऐसे नहीं कि आप बस बैठ गए फिर आपने एक डिसीजन ले भी लिया
तो उसके बाद आपको फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर उसको चेज करना है, और बहुत ज़्यादा कनेक्शन बिल्डिंग होती है। राइट। ये आपको करना होता है। फिर बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, ये आपको आना चाहिए एज अ मैनेजर। So did you do any more certifications? हाँ, उसके बाद मैंने सर्टिफिकेशन तो काफ़ी की है। जैसे जब आप NHS में जाते हो तो वहाँ पे मैंडेटरी लर्निंग्स होती हैं, वो सारी मेरे को समझ में आई उस टाइम पे, है ना। जैसे GDPR है, डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं, है ना, उसकी ट्रेनिंग होती है, फिर सेफ गार्डिंग की ट्रेनिंग होती है, इन्फेक्शन कंट्रोल ट्रेनिंग होती है, फायर सेफ्टी ब्ला, ये सारी मैंडेटरी ट्रेनिंग होती हैं। तो ये सारी ट्रेनिंग की, फिर इसके बाद मैंने ये यहाँ पे आके जो इस कंपनी की मैंडेटरी स्पेशल जो ट्रेनिंग्स हैं वो की। So ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है अराउंड दीज ट्रेनिंग्स, ये हमें पहले से करके रखनी चाहिए या फिर ये तो हर कंपनी की मैंडेटरी ट्रेनिंग मैंडेटरी है। ट्रेनिंग्स हैं, तो जब वो आप कंपनी ज्वाइन करोगे देन दे विल मेक यू डू गो थ्रू ऑल हाँ, दोस ट्रेनिंग्स इन ये एनी आपको केस। करनी ही पड़ेगी। देखो बेसिक 2 चीज़ें हैं, वो तो हर इंसान को पता होनी चाहिए। पहली, अगर आप हेल्थ केयर में हो, पहली चीज़ है GDPR। GDPR है इस कंट्री का डेटा प्रोटेक्शन लॉ, राइट। ठीक है। वो आपको आना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं कि कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बस Right. इतना है बेसिक कि इन्फॉर्मेशन आपको उस पास होनी हाँ, चाहिए। कि आपके यहाँ से डेटा की जो सेफ्टी है वो आपको पता होनी चाहिए, है ना। कि आपने अपना प्रोफेशनल ईमेल यूज़ करना है, अपने पर्सनल ईमेल से, व्हाट्सएप से डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करने, राइट। है ना। पता नहीं इंडिया में तो होता है नहीं होता। इंडिया में तो सब चीज होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ना, बहुत 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 important इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आप किसी का डेटा ऐसे नहीं शेयर कर सकते किसी के साथ। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ होती है सेफ गार्डिंग, जिसपे यहाँ पे आप अगर हेल्थ केयर में हो और आपको सेफ गार्डिंग की नॉलेज नहीं है तो फिर तो आप नहीं। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन तो हमेशा आता है, सेफ गार्डिंग और GDPR, और अगर हुआ तो डाइवर्सिटी इंक्लूजन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मगर वो What we will try and do, we'll take some of these certification links from Kavaldeep and we'll put them in the description for you guys here. You can actually go and review and see them for yourself. Knowledge is free. Absolutely. Knowledge should be available for everyone. So you went through this whole journey. You came in this Redbridge Council. You in this job in this not-for-profit. They didn't have a sponsorship license. They did not. उन्होंने इंटरव्यू पे ही मेरे को कहा था, we do not have sponsorship license at the moment. I cannot give you promise of that. We might or might not try to get a license. Like we had no clue about this whole visa sponsorship thingy. Right. Because it's a company-wide Yeah. thing. We have never done that, and we don't really know how this whole thing works. So how did you turn this around? जैसे मैंने आपको बताया ना, जॉब बहुत टफ थी, मगर उस टाइम पे मैंने ये सोच लिया, मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, मगर मैंने सोच लिया कि यार यहाँ ना मैंने अपना 200% देना है। क्योंकि मेरी जो जॉब को अगर वो मेरे को देते भी ना, वो अगर स्पॉन्सरशिप की बात भी करते हैं तो वो एक प्रोबेशन पीरियड होता है 6 मंथ्स का, उसके बाद ही करते। बेसिक चीज़ है, अगर मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे को एज अ एसेट नहीं देखते। Right. वो देखते ही नहीं कि यार ये बंदा ओके ही है, इतना। तो उस पे इतनी फाइट क्यों मारे? Why would I even think about हाँ। sponsoring you? अगर भी किसी को लगता है कि नहीं यार स्पॉन्सरशिप तो मेरा बर्थ राइट है, तो नहीं है ऐसा। कुछ भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है। जो भी आपको करना है, आपको लेना पड़ता है। उसके बाद तो फिर मैंने अपना 200% दिया। बेशक आप शाम को देर तक रुको, लैपटॉप घर लेके जाओ, घर से काम करो, कुछ भी करो, मगर एक होता है एम्पेरिकल लेवल पे ना, एक मैट्रिक्स में आपको दिखना चाहिए, एक चेंजेस दिखने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने हवा में बात कर दी, देखो क्या बढ़िया चीज़ होगी, ऐसे नहीं, दिखना चाहिए, नंबर्स चेंज होने चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत से होते हैं। अब वो चीज़ जो है, हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, बहुत ज़्यादा। एक होता है ना कि एक बंदे को पहले ही इतना, मेरे 6 महीने में मेरे वीज़ा ख़त्म हो रहा है, और ऊपर से मैं जॉब, मन में तो आता ही है ना कि मैं इस जॉब के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मगर मेरा कोई फ्यूचर सर्टेन नहीं है, तो मैं क्यों ही करूँ। सबके मन में आता है के मन में आएगा का, नहीं यार देखो, अपना काम जो है वो ईमानदारी से करना है ना। और ऐसे नहीं कि मतलब ये सोच के कि नहीं यार मिला नहीं मिला, मगर कल को अगर इन्होंने नहीं भी दिया ना, तो कम से कम ये कह के नहीं जाएंगे कि यार हाँ भाई एक सरदार जी आए थे और ऐसी बस ऐसे टाइम पास करके चले गए। मैं कहा ऐसे नहीं होता है ना, आए हैं तो कुछ करके ही दर्द होना जाएं। चाहिए जब जाएंगे तो। हाँ, जाए तो इनके तो आंसू निकाल के जाए, इनको भी लगे कि यार बड़ा सही बंदा था, चला गया हमारे हाथ से, है ना। तो फिर उसके बाद मैंने मेरी मैनेजर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा, वो बहुत, मतलब मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द नाइसेस्ट लेडी। उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। तो मैंने उसको ना उंगली करना शुरू किया। मैंने कहा देखो काम देखो, रिजल्ट देखो, आपको क्या चाहिए। मैं कहा KPIs आप सारे देखो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। मैंने कहा देखो ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, सर्विस कैसे ग्रो हो रही है ना। मैं कहा करो, आप बात करो। कहती मैं बात कर रही हूँ, बिल्कुल बात कर रही हूँ, और जैसे तू काम कर रहा है तेरी प्रोबेशन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, हैं तू टेंशन मत ले, मैं बात कर रही हूँ। मैं कहा कर ले यार। अच्छा, फिर इधर उधर हमने बात करना शुरू किया। उसने जब बात बोली ठीक है, वो भी ऐसे कंपनी की मालिक तो है नहीं, ये कंपनी काफ़ी बड़ी है, राइट, ऑल ओवर यूके इनकी ब्रांचेस हैं, है ना। उन्होंने कहा कि देखो कंपनी लेवल पे हमने CEO तक से बात की है। CEO पता क्या कहती है, आपको अकेले को तो वीज़ा हम दे नहीं सकते,
अगर हमने स्पॉन्सरशिप लाइसेंस लिया ना तो हमने वो पूरी कंपनी के लिए लेना पड़ेगा, सिर्फ आपके एक ब्रांच के लिए नहीं। राइट। और अगर फिर जो भी एलिजिबल होगा सबको देना पड़ेगा। कहते ऐसे नहीं होता कि बस चुपके से सरदार जी को एक हमने कॉस्ट लेटर पकड़ा दिया, राइट। तो ऐसे नहीं होता, सबको देना पड़ेगा। सिस्टम एंड वी विल गो बाय द सिस्टम। वो कहते फिर वो एक वो हो जाता ना, अगर कल को एक एम्प्लॉय आके बोले कि आपके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है और आपने एक बंदे को वीजा दे रखा है बट मेरे को तो नहीं दिया, मैं भी एलिजिबल हूँ, तो कह रहे फिर ये अनफेयर हो जाता है, वो बंदा हमें ट्रिब्यूनल में ले गया, हमारी तो फिर हो जाएगी दिक्कत। और अब कह रहे अब इतने लोगों को फिर हम वीजा दें, तो इसमें तो पैसा कितना लगेगा हमारा। हाँ। मैंने कहा तो पैसा तो लगेगा तो लगाओ, पैसा तो होगा आपके पास। राइट। अब मेरे को क्या पता इनके पास है नहीं है, जो भी है आप लगाओ। अब देखो मैं तो जो मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है टू वर्क हार्ड एंड टू डिलीवर रिजल्ट। अब ये चीज़ मेरे हाथ में तो है नहीं। मैं कहा आपको मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो मेरे पर्सनल लेवल पे जो स्पॉन्सरशिप करने के पैसे हैं, मनी है ना, जो आपको स्किल चार्ज वगैरह देना होता है, आप मेरे से ले लो, और कुछ है तो बताओ। मैं कहा जो अपना पैसा है वो तो मैं दूंगा, हेल्थ सर चार्ज हो गया और बाकी सारे जो हो गए, बाकी जो आपको जो मेरी तरफ से पैसा देना होम ऑफिस को, मैं वो भी दे दूंगा, आप काम तो करो। तो ठीक है। फिर फाइनली बहुत ज़्यादा इनकी पता नहीं कितनी 1500 तो मीटिंग हुई, इनकी बहुत ज़्यादा मीटिंग हुई। फिर फाइनली जो फाइनेंस टीम है, पेरोल टीम है और जो HR टीम है, इन्होंने बैठ के राउंड टेबल मीटिंग की CEO के साथ। फिर उन्होंने कहा कि हाँ हम स्पॉन्सरशिप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। मैंने कहा चल भाई, मैं कहा देखो, मेरी मैनेजर कहती देख कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं मिल ही जाएगा। राइट। होम ऑफिस का क्या, वो तो मना कर देगा, मना कर सकता है। उसके होम ऑफिस है। मैंने कहा देख मिल तो जाएगा। मैंने कहा तू टेंशन, मैं गुरुद्वारे जाता हूँ मुझे पता है लाइसेंस मिल जाएगा तुम्हें, बस ये है कि कब मिलेगा ये नहीं पता। होम ऑफिस में डिलेस बहुत है ना, बहुत लंबी उनकी ड्यूरेशन है। तो वो करते करते मैं अपना करता हूँ। मेरे ख्याल 2-2.5 महीने बाद मेरे को, या 3 महीने बाद मैसेज आया उसका। मेरी मैनेजर कहती है, नहीं मेरे ख्याल पीपल्स टीम से, हमारी HR टीम से ईमेल आया। वो कहते हैं कि आपको जान के बहुत खुशी होगी, हमारा लाइसेंस आ गया, होम ऑफिस से हमारा स्पॉन्सरशिप का लाइसेंस आ गया। और कह रही आपकी ही हम सबसे पहली एप्लीकेशन लगाएंगे। कहती है अगर हमसे कोई मतलब गलती हो जाए तो माइंड नहीं करना है, हमारी कंपनी की पहली एप्लीकेशन है, हमें भी नहीं आता कैसे करना है। कह रही होम ऑफिस वालों ने हमें एक सिस्टम होता है SMS करके, स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट सिस्टम, ये दिया है, अभी हम सीख रहे हैं ये सिस्टम, हम भी सीख रहे हैं। मैं कहा ठीक है। मैं कहा आप सीखो, मैं भी अपने लेवल पे रिसर्च करता हूँ। तो उनको मैंने सारी चीज़ें डिटेल में, जो भी जितना भी मैं डिटेल में दे सकता था ना, कि जैसे लिंक मैंने सेंड किया, फिर उसके नीचे एक स्क्रीनशॉट भेजा, यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, क्लिक, ऐसे करके मैंने उनको ईमेल्स भेजे कि हाँ कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। फिर मैं बस वेट कर रहा था, मेरा प्रोबेशन पास हुआ और उन्होंने मेरे को कॉस्ट लेटर दे दिया। प्रोबेशन पास होने के बाद कॉस्ट लेटर आया मेरे पास, तो मैंने कहा चलो बढ़िया है। फिर मैंने किया, खुश, मैं बहुत खुश। हालांकि मैंने किया अक्टूबर में अप्लाई, फेब में मेरा वीज़ा ख़त्म था। राइट। तो मेरे पास कितने, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 4 महीने बाद मेरा वीज़ा ख़त्म था। तो मैंने अक्टूबर में अप्लाई किया। अब अक्टूबर में मैंने अप्लाई किया तो एक चीज़ अच्छा और उन्होंने अच्छी बोल दी। वो कहते पैसा तो छोड़ो, आपने हमें क्या देना, आपने जो देना है हम वो भी आपका रिफंड कर देंगे, जो भी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस जो भी होगी हम आपका रिफंड कर देंगे। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मैंने उसके बाद उनको मैंने बोला कि मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया होम ऑफिस के साथ। आपको पता है वो एक ऐप के थ्रू होता है, UK इमिग्रेशन ऐप के थ्रू है ना, वहाँ पे वो BRP वगैरह स्कैन होता है, वो एक पूरा प्रोसेस है वो। फिर मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया और मैंने प्रायोरिटी में वीज़ा अप्लाई किया, जिसका मेरे को मतलब एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा, 500 पूरा रिफंड हो रहा था। तो मैंने कहा कि यार प्रायोरिटी कर, हाँ 5 दिन में प्रॉमिस था कि हम 5 दिन में रिस्पॉन्स देंगे। राइट। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 दिन में रिस्पॉन्स देंगे, वीज़ा नहीं देंगे, रिस्पॉन्स देंगे 5 दिन में। मेरे को 2 दिन बाद उनका रिस्पॉन्स आया कि वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर स्पॉन्सर एंड वी विल बी एबल टू गिव यू रिस्पॉन्स विद इन द एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम, सो यू माइट हैव टू वेट अ बिट लॉन्गर, वी हैड मोर डिटेल्स, विल गिव यू एन ईमेल एंड विल कॉन्टैक्ट यू। ठीक है, होगा कुछ चाहिए होगी बात। फिर मैंने वो ईमेल जो है फॉरवर्ड किया अपनी HR टीम को। वो कहती हमें तो कुछ नहीं आया। मैं कहती मेरे को तो आया, आप चेक करो। तो उन्होंने चेक किया, उनका भी अभी तक उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं, मेरे को नोटिफिकेशन आ गया। फिर मेरे ख्याल ऑलमोस्ट 1 महीना बाद जाके हमारी जो टीम है उन्होंने बताया कि उन्होंने ना जॉब कोड जो होता है वो गलत डाल दिया था। उनको नहीं पता, उन्होंने अपने हिसाब से सही डाला। होम ऑफिस ने कहा जॉब कोड ठीक नहीं है, ये जो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन भेजी है इसके हिसाब से हमें लगता है ये होना चाहिए जॉब कोड। अब देखो जो होम ऑफिस बोले वो ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, अब क्या हम फिर से कॉस्ट लेटर भेजें, फिर से करें? वो कहते नहीं, आप जो अपना SMS सिस्टम है उसमें जाके बस चेंजेस कर दो, दैट्स इट। तो उन्होंने वो चेंजेस कर दिए। मैंने कहा ठीक है, अब तो
प्रॉब्लम ही कोई नहीं, ऑल गुड, अब तो आ गया बस। राइट। बस आए, मैं फिर दिल्ली की टिकट बुक करूं और मैं घर वालों से मिलने जाऊं, तो फिर नहीं आया। करते करते मैं सोच रहा था जो क्रिसमस और जो न्यू ईयर का टाइम है वो घर में मनाऊंगा, क्रिसमस भी निकल गया, न्यू ईयर भी निकल गया, जनवरी भी खत्म होने पे आ गया, वो कोई उनका रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। जो जनवरी के अंदर तो मेरा फिर बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। मैं कहा यार पैसे भी दे दिए एक्स्ट्रा, अक्टूबर का अप्लाई कर रखा है, अब जनवरी आ गया, कोई इनका रिस्पॉन्स नहीं, मेरी एचआर टीम को भी कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब क्या करो, मतलब ऐसे में बंदा करे तो करे क्या, कहाँ जाए। मगर ये है ना कि तो मेरे से बैठा नहीं जाता कि मैं कुछ तो करना ही होता है, चाहे उसका कुछ निकले ना निकले, बट कुछ तो करना होता है। तो मैंने हमारे जो लोकल एमपी है फूड में, इनके वो मैंने पहले ईमेल लिखा। मैं कहा देखो ये सब चल रहा है, मैं आपका कॉन्स्टिट्यूएंट हूँ और ये सब है, और देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, वो लेबर एमपी था, तो मैं कहा लेबर को करते हैं, वो थोड़े ज़्यादा सुनते हैं इन बातों में। तो उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं उनके की वर्कर या उनके उससे। फिर मैंने लेटर जो है वो प्रिंट करके उनके गेट में ड्रॉप करना, वो ज़्यादा दूर नहीं है मेरे ऑफिस से, ड्रॉप करना शुरू किया। डेली नॉक करो, लेटर ड्रॉप करो। ठीक है, कोई नहीं। फिर अगले दिन आए, जैसे लंच ब्रेक के टाइम पे लेटर ड्रॉप किया, नॉक किया। मैं कहा कभी तो खोलेगा, आज नहीं कल कभी तो खोलेगा मेरे लिए गेट। तो किए मैंने ऐसे कम से कम 8-10 लेटर तो ड्रॉप किए। कई बार मैं 15-15 मिनट करे जा रहा हूँ, बेल बजाए जा रहा हूँ उनकी। फिर मेरे को लगता है कि हाँ चलो टाइम हो गया वापस। उसके बाद एक दिन खोल दिया उसने, एक दिन खोल दिया। वो जो उसकी की वर्कर थी उसको मैं पहचान गया, क्योंकि उसको मैं वही इवेंट पे मिला था। तो वो पहचान गई मेरे को, वो कहती क्या हुआ। मैंने उसको सारी बात डिटेल में बताई। मैं कहा देख यार ये सब हुआ मेरे साथ। वो एक आदमी था, उसने फिर मेरा केस स्टार्ट किया। वो कहता देखो हमारे पास होम ऑफिस का एक ईमेल एड्रेस होता है जो सिर्फ हमारे पास होता है, एमपीज के पास होता है, वो आपको नहीं मिलेगा, आपको हम सीसी भी नहीं करेंगे ईमेल में। Right. ठीक है, आप जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है विद एविडेंस सारा कुछ स्क्रीनशॉट करके आप हमें फॉरवर्ड कर दो। मैंने उसको उसी दिन फॉरवर्ड कर दिया। फिर मैंने उसको चेज किया, मैंने कहा आपने किया ईमेल, तो उसने मेरे ख्याल 2 दिन बाद ईमेल कर दिया होम ऑफिस को। उसने होम ऑफिस को ईमेल की, अगले दिन होम ऑफिस का मेरे पास ईमेल आ गया। वो कहते हैं वी आर वेटिंग फॉर सम मनी फ्रॉम योर कंपनी। कहा यार आप पैसे नहीं दिए। मैं कहा मेरे को बता देते, मैं अरेंज कर देता। मैंने ईमेल भेजा अपने एचआर को, मैंने कहा ये पैसे वाली क्या बात होगी। वो कहती पता नहीं। फिर एचआर ने होम ऑफिस से बात की, तो हो सकता है बीच में कोई एक चार्ज होगा जो उनको नहीं, टीम को जनरली पहली बार कर रहे थे, उनको नहीं पता होगा कि यार ये चार्ज भी कोई देना होता है। और ऐसा भी नहीं कि आपको यार अगर उनको नहीं पता तो आप बता दो ना। राइट। ये थोड़ी कि आप लंबा खींचे जा रहे हो उसको। तो वो फिर मेरे को 1-2 दिन बाद उसका ईमेल आ गया, मेरी जो एचआर है, कि हाँ हमने ना पैसा दे दिया। राइट। वो पैसा दे दिया। बस उसके बाद मेरे ख्याल हफ्ते बाद मेरा फेब के अंदर वीजा आ गया। जिस दिन मेरा एक्सपायरी थी ना, उससे मेरा 3 दिन पहले वीजा आया। और उस टाइम पे तो मैंने कहना शुरू, मैं कहा देखो बस जा रहा हूँ, मैं तो 2 दिन हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद चला जाऊंगा। ऐसे करके मैं ऑफिस में बातें करनी शुरू कर दी। मैंने कहा कर लो 3 दिन और ऐश कर लो, उसके बाद फिर मैं जा रहा हूँ। तो अब वीजा आ गया, तो फिर मेरी जाके सांस में। तो ये है एक प्रोसेस। तो आई थिंक द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि लगे रहो और जिसको रखे साइया मार सके ना कोई। तो भाई बिल्कुल अपना मेंटेन योर फेथ, डोंट स्टॉप वर्किंग, बिल्कुल पुट इन दैट हार्ड वर्क, बिल्कुल रिजल्ट्स विल कम सूनर और लेटर, मे नॉट कम एवरी टाइम, बट बिल्कुल नो सब्स्टिट्यूट। और देखो रुकना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ना आपने जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया है ना, आपने जिस दिन आपका जो लर्निंग प्रोसेस है जिस दिन वो रुक गया, उस दिन आपकी लाइफ स्टैग्नेंट हो गई। अभी जैसे मैं करंटली, अच्छा ये लेवल 2 जो मैंने NCSCT सर्टिफिकेट, इसका मैंने लेवल 3 भी किया स्टॉप स्मोकिंग में। SCTRP करके ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका मैंने लेवल 3 सर्टिफिकेट किया। फिर उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बहुत बड़ी है, उसका नाम है UKPHR, तो पब्लिक हेल्थ रजिस्टर है यूके का। मेरे को उसमें अपना रजिस्ट्रेशन चाहिए, वो एक क्रेडिबिलिटी देता है, तो उसके लिए मैंने रजिस्टर किया। अभी मेरे वो उसके मास्टर क्लासेस हो गए हैं सारे, राइट। और अब मैं पोर्टफोलियो बिल्ड कर अपना, तो पॉसिबली सब कुछ बढ़िया रहा तो नेक्स्ट ईयर मेरा वो पोर्टफोलियो बिल्ड होके मेरे पास UKPHR में रजिस्टर हो जाऊंगा। अच्छा, मीनवाइल मैंने जो फैकल्टी ऑफ पब्लिक हेल्थ है उसमें मैं फेलोशिप ली है, जो रॉयल सोसाइटी ऑफ पब्लिक हेल्थ है उसमें मैंने फेलोशिप ली है, ठीक है, जो एक क्या नाम है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ है उसमें मैंने एसोसिएट वो लिया है, उनका सर्टिफिकेट है ना। तो ये सारी चीजें ये चलती रहती हैं, राइट। बैकग्राउंड में। लर्निंग शुड नॉट स्टॉप, लाइक यू मेंशनड, Never. there are many more certifications you can continuously keep doing to prove that you can rise up also in the corporate ladder, and that way your success is not just getting the job but also growing with the job and continuously adding more and more value to them, increasing your credibility. And I think Absolutely. that is key, I think, outcome from today's discussion. Maybe you can't sit for long and you're getting uncomfortable, we can maybe start walking again. But I clearly mentioned I did this audit using this methodology, and which increase
the SEO monitoring from 60% to 85% Right. in this many months. Right. जब आप इस तरीके से तो सामने वाले को समझ में आता है कि हाँ ये जो बंदा है ये रिजल्ट ओरिएंटेड है और यही चीज आपको सेट आउट करेगी लोगों से. So definitely, I think so you are saying that, what exactly are you looking for when you hire? So number one thing that you mentioned is in your resume, don't just mention what you did, explain the outcome. Also the Absolutely. impact of what you did, and that is going to set you apart, which most people don't do. मैं बैंगलोर से मैंने अपने MBA किया है, and that is the first thing we were taught when we started our MBA. That Absolutely. when you are mentioning what you did, always mention the impact along with that. So exactly, same learning, I think. So if you like this content, please subscribe to our channel and I will see you all in the next video.